Hello everyone, my name is Kumari Nandini. I am here to present my club, Humans of Galgotias. Today we are here with Mr. Manish Srivastav sir, founding partner of Alpha Value and investment committee member in IIT Patna. So let's start our podcast. Good afternoon sir. Namaste, Yeah, hi sir. Nandini. Great to Hello, hear. Yeah. Please tell what you want to understand, and with the experience that I possess, let me deliberate whatever you feel like, free to talk on anything what you want to. यस सर, सो जैसे कि हम अभी कॉलेज में हैं तो मैं आपसे कॉलेज लाइफ के बारे में जानना चाह रही थी. Okay. तो सर क्या आप हमें अपनी कॉलेज लाइफ की बेसिक मेमोरीज बता सकते हैं जो आपको आज भी Okay. याद हो. Okay. So I passed out from an MBA college or ICFI Business School, Gurgaon. Yes. And it was the time around 2006-8, that being the time period. And जो सबसे इम्पोर्टेंट पीरियड आपको याद होगा, when 2008 there being the recession that has taken place. And so I was doing the internship in PwC, and I got the PPO as well. Then because of the recession and everything, that PPO got cancelled, and that was something I would say a setback that has happened. And but still I would say that it is not, whenever you are starting your career, it is not like one fine day that something good will happen. It is the journey that you have to travel across, and over the number of years, so many things, ups and downs that will come in life. Be prepared, whatsoever it may come, take it with confidence. That's what I want to say. Okay, sir, that's very nice, sir. So, what are the some biggest challenges and opportunity you see for startups, sir? For a startup, I would say, when you start the journey, the first thing that you need to look at, what are my strong skill sets are. Yes, sir. If I know my strong skill sets, then only I can develop something, right? So more focus need to be on what I know and what sort of people I can bring along with me. So the first important ingredient that goes into it is the conviction factor of the founder. Like, what is the conviction he hold? What is the dream he is looking at? What he want to create and carve out? So once he make a conscious decision of moving it forward, then other people start also looking at, okay, if he want to build something, let's get along with him and build that thing. Okay. Yes, sir. So at the initial point, the major problem with the startup phase is maybe like the funding. That may be one, that they don't have much of the resources at the initial point of time. But if you explore it right, now there being like the government who is ready to provide the grants, then you have the angel investors who may be willing to invest. Then you may talk in the initial stage to your friend and family as well. It is more about the conviction that you are holding for your startup journey and the people who want to join that journey, right? One thing I would say, you don't have to go to every investor and talk, I want to do this, invest in me, invest in me, invest in me. Find the sweet spots, or find the investors who are looking at the segment that you want to create it. So go to only those set of investors who may be willing to look at your segment. Okay. सो यस आई एम टोटली एग्री. जैसा कि आपने कहा कि पहले इन फाइनेंस की भी प्रॉब्लम आती हैं काफ़ी ज़्यादा, तो मैं इस चीज़ से पूरी एग्री करती हूँ. तो सर आपके अकॉर्डिंग सक्सेस की डेफिनेशन या मीनिंग क्या है? क्या ये फाइनेंशियली, क्या ये पूरी तरीके से फाइनेंस पे डिपेंड करती है या कोई और फैक्टर पे डिपेंड कर रही है? सो यू वांट टू आस्क अबाउट अ सक्सेस ऑफ अ स्टार्टअप और सक्सेस ऑफ अ पर्सन. ओके. देखो, सक्सेस इट्स नॉट अ वन डे गेम कि आज मैंने कुछ कर लिया, आज मैं सक्सेसफुल हो गया, आज मैंने आईआईटी का एग्जामिनेशन हुआ और मैंने आईआईटी क्लियर कर लिया तो आज मैं सक्सेसफुल हो गया. दैट मे बी वन stop point, okay, for getting the success. That may be n number of the stop points that will come, or the milestones that I need to travel, and the milestone I will achieve in my life. ठीक है ना? So the question that arises is, success is not something
which is one day success. It need to be a continuous success. You do this thing, you started this company, you have built that company, and then you are taken, maybe at the later year you taken the exit and you started something different. Okay, so the question arises is like, what is the journey that you are traveling? What is the success point that you are creating? How good you are doing something for the society, and how the people are gaining out of it. Okay, so it is not only what you've been doing, but how much good you are doing for the others as well. ओके सर, दैट्स रियली नाइस. सर, आपके अकॉर्डिंग जो मेंटल स्ट्रेस होती है, जो हमें ज़रूरत होती है मेंटल पीस की, वो कहाँ पे लाई करती है आपके अकॉर्डिंग? मेंटल पीस ये कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है. मैं कहूँ कि मेंटल पीस आपको यहाँ जाके ये मेंटल पीस मिल जाएगी, ये अचीव कर लेंगे तो मेंटल पीस मिल जाएगी. बहुत से लोगों को लगता है बहुत सारे पैसे आ जाएंगे, व्हेन आई हैव लॉट ऑफ इनकम आई विल हैव द मेंटल पीस. इट इज़ नॉट लाइक दैट. मेंटल पीस इज समथिंग what you feel like I want to achieve it in one at the initial step. After achieving this, the next step I need to reach to that level and to the next level and to the next level. So mental peace अगर आपको आ गई, if suppose you reach to the status of the mental peace, then एक तरह का वो ब्लॉक हो जाएगा वहाँ पे जाके आपकी जर्नी. आपको लगेगा हमें सब कुछ मिल गया. जबकि लाइफ एक ऐसी जर्नी है जहाँ पर आपको कंटिन्यूस वे में, एक मोमेंटम वे में आपको आगे बढ़ना है, एंड यू नीड टू क्रिएट और कार्व आउट अ जर्नी फॉर योर सेल्फ. ठीक है. सो देयर इज नथिंग लाइक कि आपको मेंटल पीस किस में मिलता है. मेंटल पीस एक इमेजिनरी थॉट प्रोसेस है जो हमारे माइंड में जाता है कि ये पाने से मिल जाएगा, बट जरूरी नहीं है. और सिचुएशन के साथ, टाइम के साथ आपका वो चेंज होता जाता है. जब आप स्कूल में होते हो आपको लगता है मेरा ये टीचर बहुत अच्छा है, मेरे को टीचर बनना है. जब स्कूल पास आउट होते हो तो फिर आपको लगता है कि ये इंजीनियर मैं देखता हूँ, सुबह जाता है जॉब में, शाम को आता है, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है इंजीनियर बनना, तो मैं इंजीनियर बन जाऊँ. जब उसके आगे जानते हो तो आपको लगता है कि नहीं यार, मेरे को ना ये जो बंदा है, जो इन्वेस्टमेंट बैंकर है, वो बहुत अच्छा काम करता है. तो आपके जो चीज़ हम देखते जाते हैं, हमारा माइंड फ्रेम कंटिन्यूस वे में वो चेंज होता जाता है. तो इट इज़ नॉट अ जर्नी कि हम कहें कि नहीं ये चीज़ फिक्स है, हमने ये कर लिया तो हमारा लाइफ पूरी हो गई. वी नीड टू बी कंटिन्यूस क्रिएटिंग समथिंग, वर्किंग फॉर समथिंग एंड क्रिएटिंग अ वैल्यू फॉर द सोसाइटी ओवरऑल. तो एट द एंड ऑफ द डे आई बिलीव इट इज़ नॉट ओनली द मनी, but at the same point of time what good you are doing to the society, which will provide you more solace, more well-being feeling to you that I've been doing something good for the society overall. सर, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ. तो सर, आप अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं अपने इस वर्क पे, आपकी जर्नी में आपने कैसे अपने स्ट्रेस को मैनेज किया है? देखो, स्ट्रेस लेने से आता है. स्ट्रेस आप लोगे ही नहीं तो स्ट्रेस आएगा ही नहीं. स्ट्रेस तो जब आप लोगे तब आएगा ना. यू डोंट टेक स्ट्रेस. अगर आप, द क्वेश्चन इज, देखो देयर मे बी सम सिचुएशन व्हिच मे बी वेरी अलार्मिंग. भाई किसी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, दैट मे बी अलार्मिंग सिचुएशन. बट नॉर्मल केस में अगर आप जॉब कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, आज मेरे सीनियर ने मेरे को कुछ बोल दिया तो आपको लगने लगा कि नहीं ये तो एंड ऑफ द डे है, मैं तो कल जाके सुसाइड कर लूँगा. इट शुड नॉट गो दैट वे. इट इज़ जस्ट वन बैड डे मे बी. टुमारो आई विल कम अप विद अ फ्रेश माइंडसेट, फ्रेश एनर्जी. तो कहीं पर ऐसा नहीं लगना चाहिए कि नहीं बॉस ये तो बस एंड हो गया. तो स्ट्रेस आपको तभी आएगा जब आप उस स्ट्रेस को लोगे. और देन देयर इज अ कॉफ़ी विच इज़ देयर, हैव अ कॉफ़ी एंड स्ट्रेस खत्म हो जाता है कॉफ़ी के बाद. यस सर, बट आजकल के स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस होता है. वो लेते हैं स्ट्रेस. देयर इज नो नीड टू टेक स्ट्रेस. देयर इज नो नीड टू टेक स्ट्रेस. बहुत बच्चे, उनको लगता है कि ये जितना मैंने देखा है सपना, ये नहीं हो पाया, मैं इस चीज़ की तैयारी कर रहा था, नहीं हो पाया तो मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया. इट शुड नॉट गो दैट वे. मैं खुद जब 12th क्लास पास हुआ तो मैं इंजीनियर बनना चाहता था. मैंने IIT की परीक्षा दिया, नहीं सिलेक्ट हो पाया. नेक्स्ट ईयर एक साल और दिया, फिर भी नहीं सिलेक्ट हो पाया. और आज मैं लगता है मेरे को आफ्टर ट्रैवलिंग 20-25 ईयर्स कि बहुत अच्छा हुआ कि मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया था. अगर मैं एक इंजीनियर बन गया होता तो मेरी क्या वैल्यू होती. द क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द गुड थिंग यू वांट टू डू इन लाइफ. जरूरी नहीं कि आपको हर डॉट पे या हर पॉइंट पे सक्सेस मिले. आपकी ये जर्नी है, कभी सक्सेस मिलेगा, कभी फेलियर मिलेगा. इट शुड गो दैट वे. आप एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल लो, इसरो ने रॉकेट लॉन्च किया, फेल हो गया इसरो का रॉकेट. द क्वेश्चन इज़ कि सब लोग बहुत हताश थे, नहीं हो पाया, इतना पैसा लग गया, इसरो ने लॉन्च नहीं कर पाया. तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने आके क्या बोला, वी विल डू इट.
एंड विद द फुल फोर्स विल डू इट। और उसके बाद ही 6 मंथ्स के अंदर जो इसरो ने लॉन्च कर दिया और हमारा ऑर्बिट में जाके सेटल हो गया। एंड दैट इज़ व्हाट वी नीड टू लर्न एट। फेलियर इज़ नॉट समथिंग जो एक बार हो गया तो हो गया, इट इज़ अ कंटिन्यूस। एक बार फेल हो गए, 2 बार फेल होंगे, ऐसा कभी नहीं है कि आप फेल ही होते रहेंगे। जस्ट कीप ऑन ट्राइंग, एट वन डे यू विल गेट इट व्हाट यू वांट इन लाइफ। यस सर। सो सर आप अपनी जर्नी के बारे में, आप अपने जर्नी के एक्सपीरियंस बताइए हमारी गलगोटियाज़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को कि कैसी रही आपकी जर्नी। ओके, सो द क्वेश्चन इज लाइक कि डोंट टेक टू मच स्ट्रेस, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। ओके सर। लाइफ में कुछ हो या लाइफ में कुछ ना हो, इट हार्डली मैटर्स। व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज़ हाउ मच यू हैव ट्राइड फॉर। आपने कितना एफर्ट डाला है। अगर उसके बाद भी सक्सेस नहीं मिली, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो आपका जो मेहनत थी, जो आपने एफर्ट डाले, वो कंपाउंडेड वे में आपको रिटर्न देंगे लेटर ऑन, ठीक है ना। सेकंड, हमने जब मैंने स्टार्ट किया और व्हेन आई पास्ड आउट फ्रॉम माय MBA कॉलेज, तो मेरी पहली जॉब लगी। तो वहाँ पे जॉब लगी और उस समय काफ़ी अच्छी सैलरी पे जॉब लगी थी। बट द क्वेश्चन इज़ दैट मेरे को वो पसंद नहीं आई। आई डोंट फील इट लाइक डूइंग इट। वो अंदर से एक इंस्टिंक्ट नहीं आती थी कि ये जाके मेरे को काम करना है, कि स्टॉक ब्रोकिंग का काम था। तो आई डोंट फील दैट गुड इनफ। तो आई लेफ्ट इट ऑन 37th डे। वो अलग बात थी, वो सैलरी मिल जाती है, 37 डे पे सैलरी मिल गई थी। बट द क्वेश्चन दैट अराइजेज इज, उसके बाद आप क्या देखते थे? मेरे को लगता था इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है, मेरे को लगता था यार डील्स कैसे लोग करते हैं, प्राइवेट इक्विटी कैसे होता है। तो आई जस्ट ट्राई टू इंटर इनटू दैट पर्टिकुलर डोमेन। मे बी इनिशियल स्टेज में आपको अपनी सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं देखना चाहिए, आपको अपना लर्निंग कर्व देखना चाहिए। कि एक आदमी कह रहा है कि मेरे को 50,000 की सैलरी देगा, एक कहता है मैं केवल 25,000 की सैलरी दूंगा। बट 25,000 वाला जो आपको लर्निंग कर्व दे रहा है, वो अगर ज़्यादा बेटर है इन कंपैरिजन टू 50,000, तो ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आपका वो लेस पे मास्टर कैन क्रिएट मोर वैल्यू फॉर यू रादर देन अ बिग पे मास्टर। तो दैट इज़ व्हाट आई फील। यस सर, थैंक यू सर। सो सर, ऐसे आपको क्या मोटिवेशन मिलती है अपने वर्क करने के लिए? आपकी मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन शुड नेवर कम फ्रॉम अदर पीपल, इट शुड कम फ्रॉम योर सेल्फ। यस सर। तो एक सेल्फ मोटिवेशन होना। हाँ। व्हेन यू आर रनिंग योर ओन शो, आपको कोई और मोटिवेट नहीं कर सकता, आपको खुद से मोटिवेटेड रहना पड़ेगा और आपको दूसरों को मोटिवेट करना पड़ेगा, तभी वो जाके बेटर काम कर पाएंगे, वो आपके लिए अच्छा काम कर पाएंगे। तो व्हाट वी नीड टू लुक एट कि हाउ वी नीड टू बी सेल्फ मोटिवेटेड। और सेल्फ मोटिवेटेड होने के लिए अपने आप तो कहीं से आ नहीं जाएगा सेल्फ मोटिवेशन। वी नीड टू रीड गुड बुक्स, वी नीड टू look at those people who have created their own destiny out of it from nowhere. I met one person, Mr. Shiv Khera, एंड मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उन्होंने बोला कि फ्रॉम रैक्स टू रिचेस स्टोरीज जो है, दैट इज़ व्हाट आई एक्चुअली हैव ट्रेवल्ड। सो जब आप वो जर्नी ट्रेवल करते हो जहाँ पे आप कुछ नहीं थे, एंड आई ऑल्सो स्टार्टेड माई जर्नी, जब हम वहाँ ठेला होता था, ठेले में वो राइस और राजमा जो है 10 रुपये का मिलता था, एंड वी चलो ये 10 रुपये में काम हो जाएगा, एंड दैट वेयर वी स्टार्टेड फ्रॉम। तो एवरीबडी हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम दैट पॉइंट ओनली। तो आपके लिए आपको कभी थकना नहीं चाहिए कि नहीं यार मेरा हो नहीं पाएगा कुछ। आपके अंदर ये होना चाहिए यार मैं क्रिएट कर दूंगा। अगर ये कन्विक्शन अंदर है तो वो कन्विक्शन आपको विगर क्रिएट करता है, और वो विगर दूसरा आदमी देखता है और दूसरा आदमी आपको वैल्यू प्रपोजिशन देता है उसका। ओके सर, यस सर, दैट्स नाइस सर। सो सर, जैसे कि बच्चे अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन के साथ साथ वो स्टार्टअप भी करते हैं, तो सर जब वो स्टार्टअप करते हैं तो अपने स्टार्टअप को कंटिन्यू करने के लिए वो ग्रेजुएशन ड्रॉप करते हैं, तो क्या ये करना सही है आपके अकॉर्डिंग? देखिए, सही गलत तो आपको दोनों चीज़ के एग्जाम्पल मिल जाएंगे। बहुत से लोग ड्रॉप आउट करके 12th क्लास में ड्रॉप आउट करके भी जो है स्टार्टअप। द क्वेश्चन इज़, आई वुड से, एक इनिशियल लर्निंग एंड इनिशियल जो है एजुकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने उसको नहीं किया है तो कहीं ना कहीं जाके बाद में थोड़ा सा हमें एक फीलिंग आता है कि यार मेरे को वो कर लेना चाहिए था। इट ऑलवेज प्रोवाइड अ सर्टेन एडेड वैल्यू टू यू। चाहे आज की डेट में मेरे से नहीं पूछता कोई आपने MBA किया था या CS किया था या क्या किया था। तो क्वेश्चन मोर इम्पॉर्टेंट इज़ कि सर्टेन स्किल सेट यू डेवलप्ड, और आपको मार्केट उसी स्किल सेट के लिए जानती है, ठीक है ना। तो अब मैं ये नहीं कहूँगा कि जो है क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। आप सुबह उठिए और कहिए कि यू बीइंग द बेस्ट पर्सन इन दिस अर्थ। मैं किस लिए आया क्यों है, मैं मेरे से अच्छा कोई नहीं है।
जब ये फीलिंग आपके अंदर आएगी तो सबसे पहले तो जब मैं नहीं मानूंगा अगर इस फीलिंग को, तो दुनिया कैसे मानेगी? यस सर। तो मैंने को अपने को ये सोचना चाहिए कि आई बीइंग द बेस्ट, और उसके लिए बेस्ट होने के लिए हमें अपनी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करना चाहिए कि व्हाट आर द एक्टिविटीज़ आई बीइंग डूइंग, और अपने एक्टिविटीज़ को कैसे हम इम्प्रोवाइज कर पाएँ। जैसे हम दिन भर को अगर 12 आवर्स को अगर हम बांटें तो 12 आवर्स में हम देखेंगे कि हमने 2 घंटे क्या किया, नेक्स्ट 2 आवर्स क्या किया, हमने कितनी स्टडी किया, क्या मैं खेलने गया, कौन मेरे फ्रेंड हैं। और लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपकी जो संगत होती है वो आपकी वैल्यू प्रोपोजिशन को होल्ड करती है। आपकी जैसी संगत होगी वैसी जो है आपका आगे का फ्यूचर फॉरवर्ड होगा। तो आप देखिए कोई ऐसा तो नहीं जो मेरे लिए लाइफ में नेगेटिव है, तो जरूरी नहीं हर आदमी को लाइफ में ऐड ऑन करना है, कुछ लोगों को हटा भी देना लाइफ से जो मेरे लाइफ के लिए नेगेटिव लोग हैं, ठीक है ना। दैट इज़ व्हाट आई फील। बिल्कुल सर, यस सर। तो सर जैसे कि अभी आप सेशन करके आए हैं, तो आपको क्या लगता है गलगोटिया, आप पहली बार गलगोटियाज यूनिवर्सिटी विजिट किए हैं, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस गलगोटियाज यूनिवर्सिटी में? देखिए दैट्स द आई कैन सी दैट सो मेनी ऑफ द ब्राइट ignited minds over here, and you all being so young, and you can do so much of the things in life, and now there are so much opportunity in the market. अब ऐसा नहीं है कि 2-4 चीज़ें हैं यही करना है। So many of the streams are there. You can explore anything wherever you feel good enough. आपको लगता है कि मेरे को मैथ्स नहीं आता है, मैथमेटिक्स नहीं आती, you can be a good orator. आप बहुत अच्छा जो है एक एडवर्टीजमेंट एजेंसी में जाके काम कर सकते हैं, जहाँ पे आपको लगता है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ साइंटिफिक उसमें, तो आप जाके यू कैन बी अ गुड इंजीनियर एज वेल, यू कैन बिकम समथिंग ऑन द साइंस, यू कैन गो अहेड। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हम अपने आप को एक स्टीरियोटाइप में प्लेस कर दें कि हमको यही करना है। तो नाउ द क्वेश्चन इज इट इज़ नॉट अबाउट वेयर यू आर, कि गलगोटिया में है या किसी अदर इंस्टीट्यूट में है। दिस बीइंग अ बेसिक लर्निंग दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, और उस बेसिक लर्निंग के अलावा हम अपनी सर्टेन स्किल सेट्स अपने आप को डेवलप करें और इस मार्केट के लिए रेडी करें। तो जो भी आदमी, केवल कॉलेज आपको नहीं बना सकता है, कॉलेज तो एक बाउंड्री है, सर्टेन टीचर्स हैं और सर्टेन आपको फैसिलिटीज़ दी गई हैं, बट द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि एक जो कन्विक्शन है आपके अंदर कि इस पूरी दुनिया को मैं हिला दूंगा, तो वो दुनिया को जो हिला दूंगा जिसके अंदर वो है, तो वो आदमी कभी भी वर्क लाइफ बैलेंस से बात नहीं करेगा कि भाई जीवन में 6 घंटा काम करना चाहिए, 8 घंटा सोना चाहिए। ऐसा अगर आप सोचते हैं तो आप एक मीडियोकर लाइफ जी सकते हैं। आई मेट रिसेंटली, आई वॉज इन सिलिकन वैली, तो मैंने वहाँ पे एनवीडिया जो कंपनी है उसका जो CEO है उससे मैं मिला। तो ही सेड कि जब हमारी लाइफ में एक जर्नी चल रही थी और स्टार्टिंग स्टेज में थे हम लोग एनवीडिया के, तो कुछ नेगेटिव होता था, तो मैं अपने माइंड में एक ही चीज़ सोचता था, हाउ हार्ड वी कैन बेंड, हाउ हार्ड इट कैन बी, हाउ हार्ड द जर्नी कैन बी। तो उन्होंने कहा कि इससे ज़्यादा क्या हार्ड हो पाएगी, तो लेट्स एक्सेप्ट इट दैट जर्नी। तो जब वो कन्विक्शन आपके अंदर होगा और जब आपको लगता है नहीं कुछ भी हो जाए हम सक्सेसफुल होके रहेंगे, तो ऑटोमेटिक वो सक्सेस जहाँ बैठी होती है वो आपकी बात सुन लेती है और वो आपकी तरफ बढ़ने लगती है, एंड दैट इज़ हियर द जर्नी स्टार्ट्स। यस सर, मतलब हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। 100% you need to be positive, and we are sitting in India, and that's such a positive country we have, such a success rate we have, such a growth story we have, and आज की डेट में पूरा वर्ल्ड हमें देख रहा है कि जो है किस तरीके से इंडिया ग्रो कर रहा है। आज आप कहीं पर भी जाते हो, आप कहते हो मैं इंडिया से हूँ, आपको एक पॉजिटिव उससे देखा जाता है। तो दैट बीइंग द सिनेरियो, आज सबसे अच्छी बात है जिस पोजीशन पे आप MBA कर रहे हो या इंजीनियरिंग कर रहे हो, आज पूरा वर्ल्ड हमें देख रहा है। आप पूरे वर्ल्ड में आप कहीं पर जाके देखो, जितनी भी टॉप कंपनीज हैं, टॉप कंपनी का CEO है वो आज वो इंडिया बैठा है, इंडिया का पर्सन इज अ CEO ऑफ दैट कंपनी, एंड दैट इज द ब्यूटी वी हैव। तो आज किसी चीज़ से डरने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। एंड डोंट टेक कि मेरा कॉलेज कौन सा है, ये कॉलेज अच्छा है, हर कॉलेज अपने में अच्छा है। इट इज़ वॉट यू आर, आप अच्छे हो या नहीं है, केवल कॉलेज नहीं बना सकता आपको खुद से बनना पड़ेगा। जो करना है हमें अपनी पूरी मेहनत करनी होगी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। 100%। यस सर। सो लास्टली मैं यही पूछना चाहूँगी कि आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे गलगोटियाज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को स्टार्टअप करने के लिए? I would say that start exploring, doing lot of research, try like
कोई आपको गैप दिखता है, मे बी आपके घर, जहाँ पे आपका घर था, विलेज था, सिटी था, आपको लगता है वहाँ की एक प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम को हम जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें? अगर उसी चीज़ को हम जब तक हम प्रॉब्लम को एनालाइज नहीं करेंगे, जब तक सामने मेरे प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं कोई भी स्टार्टअप नहीं बना सकता हूँ। तो सबसे पहले मेरे पास एक प्रॉब्लम होनी चाहिए। सेकंड, वो प्रॉब्लम क्या इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि नहीं है जो मेरा एक स्टार्टअप बन जाए। जैसे एग्जांपल लीजिए, मैंने स्टार्ट किया था एक जर्नी चांदनी चौक बाजार.com, लेकिन अब आप सोचो चांदनी चौक बाजार तो केवल चांदनी चौक तक रह सकता है ना, अब वो लाजपत नगर तो नहीं पहुंच जाएगा, सरोजनी नगर नहीं पहुंच जाएगा। तो उसकी एक लिमिटेड बैंडविड्थ थी, उसका एक स्केलेबिलिटी इशू था, जिस वजह से वो नहीं सक्सेसफुल हो पाया। तो हमें ये समझना चाहिए कि जब मैं बात कर रहा हूँ कोई चीज़ बनाने की, तो क्या वो क्रिटिकल मास, मिनिमम नंबर ऑफ पीपल क्या उसको यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे, कि ये जस्ट फॉर फैंसी पर्पस मैं सोच रहा हूँ कि बस ये मेरे लिए रेलेवेंट है। अगर कोई चीज़ केवल मेरे लिए रेलेवेंट है, इट कैन नॉट बी द स्टार्टअप। वो सबके लिए रेलेवेंट होनी चाहिए, एक समूह के लिए, एक मास के लिए रेलेवेंट होनी चाहिए, देन इट विल क्रिएट अ वैल्यू फॉर देम। थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नाइस टू बहुत अच्छा लगा, आपका टाइम बहुत वैल्यूएबल था हमारे लिए, बहुत अच्छा दिन रहा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।